और जी नेक्स्ट वन सेज, मेरा ऑडियो कार्ड ना फुल हो जाए. Financial indiscipline of my family. Dear Junaid, I hope you are doing well. This email is going to be a little heavy. I'm reaching out because my family is stuck in a cycle of financial indiscipline that I don't know how to break, and I need your perspective. We are a Jain family in Delhi running a sari and suit business for generations. While we live in North Delhi with a decent middle class lifestyle, some of our distant relatives in New Friends Colony, South Delhi, have built massive wealth in the same industry but on a completely different scale. The problem is my father has never really worked. Instead of running our own business, he has spent most of his life sitting at other shopkeepers' counters. Are discussing politics. Are bhai, discussing politics and cricket. He was deeply involved in market association politics, always elected as a general secretary, but engaging in the most unproductive activities. His approach to life has always been based on ख्याली पुलाव. जिंदगी का नियम है, एक जनरेशन कमाएगी तो अगली दो खाएंगी. Ironically, his own father had a similar mindset, and we have survived by selling ancestral property and downgrading our house every few years. Also sad. Chirag Til Andhera कहते हैं इसको. Now my younger brother, who's 25, is in the same industry but works as a broker in the cloth market. Thanks to our wealthy relatives, he got a good job through their referral, started making decent money on commissions, and was finally in a position to build something for himself. But as soon as he started earning, my father began taunting him. तेरा क्या है, कुछ नहीं है, तू उनके आगे. This constant comparison with our rich relatives created a dangerous insecurity in him. My brother, who already has a habit of simping over multiple girls he crushes on and spending on them, buying them gifts, etc., also attends their weddings and throws money while on the dance floor to look cool in those weddings, etc., started overspending even more. Oh God. In response to the taunts and pressure, he bought two luxury cars, one Hyundai Creta for himself and a Toyota Corolla for her father on almost zero down payment. That's 32 lakh worth of cars with EMIs over 1 lakh per month for years to come. He justifies this spending by claiming he needs the car to impress clients, the same clients who travel by Delhi Metro to reach their narrow laneway shops. On top of that, he takes yearly business trips to Thailand, which are more of an expensive escape than an actual investment in growth. According to estimations, he is making a net loss 30,000 rupees every month, which is being financed by God knows who. Honestly, my brother is miles ahead of my father in terms of work ethic, but this toxic mindset of showing off and spending beyond our means is keeping us trapped. While our mother is a housewife, I work in the accounting department of a news portal and can support myself, but watching my family repeat this cycle is frustrating. I want to bring about some change, but I don't know where to start. How do I help them break out of this obsession with aukat se upar spending? How do I make my brother realize that this mindset is disastrous? If you were in my place, what would you do? Would love to hear your thoughts. Oh God. So ये जैसे कि आपने सुना कि दिल्ली की एक फैमिली है जो कि जनरेशनली साड़ी के कारोबार में है, बट एज अपोज टू देयर काउंटर पार्ट्स who have upgraded over the course of decades, जिन्होंने घर भी अपग्रेड कर दिए, जिनके बिजनेसेस भी अपग्रेड हो गए, यहाँ पे इनके उल्टा माइनस में जा रहे हैं और पर मंथ 30,000 INR यानी कि लगभग पाकिस्तानी 1 लाख रुपए लॉस में जा रहे हैं. और फादर जो हैं उन्होंने ग्रो नहीं किया बिजनेस और सारा टाइम दूसरों की दुकान के ठिए पे. देखिए भाई, अपनी दुकान पे बैठना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपनी दुकान पे नहीं बैठोगे तो आपकी दुकान ज़्यादा अरसे चल नहीं पाएगी. ये चीज़ मैंने भी अपने काम में सीखी क्योंकि मैं ट्रैवलिंग बड़ी रहती थी तो मेरी दुकान आर्म्ड रहती थी. सो जाहिर है जब आप ही केयर नहीं करोगे, खैर ऐसा नहीं कि मैं केयर नहीं करता था, इट्स जस्ट मेरे काम का नेचर ऐसा था. हाउएवर किसी और के ऊपर आप दुकान कभी नहीं छोड़ सकते, दुकान पे आपको ही बैठना पड़ेगा. ये हमारे यहाँ का कल्चर है. अब ये जो है ऑफिस पॉलिटिक्स कह रहा हूँ कि मतलब वही जनरल सेक्रेटरी बनना कि मेरी वाह वाह होगी, 4 लोग मुझे जानेंगे, मेरे पोस्टर लगेंगे, मेरे इलेक्शन होंगे. यहाँ पे भी हम बहुत देखते हैं सदर मार्केट में तस्वीरें ही तस्वीरें, जी फलाना प्रेसिडेंट है. अबे भाई क्या है का प्रेसिडेंट, तेरी मार्केट का हाल तो देख. कूड़ा इतना जमा होता है, तारे लटक रही हैं, आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है. काहे का तू जनरल सेक्रेटरी, तेरा रोल क्या है? ज़्यादा ये कि कोई ट्रेडर यूनियन स्ट्राइक कर दिया, ये कर दिया, बदमाशी करना, बस सारे यही कर रहे होते हैं. यहाँ पे हर चीज़ माफिया है सैडली. एनीवे, तो आपके फादर ने जो किया अब आपका भाई भी वही कर रहा है.
एन एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। एक बाप जो होता है, फादर फिगर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, और बच्चे सिर्फ इमिटेट करते हैं। जैसे वो एनिमल का सीन नहीं है कि वो पापा आप मेरी एक्टिंग करो, मैं आपकी एक्टिंग करके दिखाऊंगा, तो वो वही बाप से ही सीखा होता है उसने। तो इधर भी जब वो देख रहा है कि बाप जो है अपनी दुकान छोड़ के दुनिया को खुश करने में निकला हुआ है, लेकिन अपना अपना घर जाए जहाँ भी जाता है। अच्छा, ये जो सिंपिंग वाली चीज़ है, ये आप एज अ वुमेन फीमेल पर्सपेक्टिव बताएं कि इट्स द लाइक हाईली अनअट्रैक्टिव ट्रेड व्हेन अ गाय ट्राइज टू विन समवन थ्रू मनी। पैसा फेंकता ही वही है जिसका कोई गेम नहीं होता, और वो उनके लिए फिर वो होता है आप एटीएम मशीन ही होते हो, आपकी कोई औकात नहीं होती। इसको फिनडॉम कहते हैं, फाइनेंशियल डोमिनेशन। अब आप उन उन लड़कियों की शादी में जाके नाच भी रहा है, पैसे भी उड़ा रहा है। अबे क्या लड़का है यार, ये कौन है ये? गलत बात है यार, सिंपिंग नहीं करनी होती ज़िंदगी में भाई। और ये कि कस्टमर को दिखाने के लिए दो दो गाड़ियाँ निकाल ली ईएमआई पे, और वो उसका कर्ज भरेंगे। इस पे वो कहते हैं ना, अगर दूसरे का गाल लाल देख के अपने गाल पे थप्पड़ नहीं मारते, राइट? इफ़ यू आर गोइंग टू अंबानी रिलायंस के साथ compete करने लग गए तो भैया आप सड़क पे आ जाओगे, आप compete नहीं कर पाओगे। आपका कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से येस्टरडे, कि मैं कल क्या था, क्या आज मैं उससे बेहतर हूँ, एंड दैट्स दी ओनली कंपैरिजन यू नीड टू डू इन लाइफ, चाहे आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो। आपने यहाँ बैठ के कंपेयर कर लिया यूट्यूब बना के, जी मेरा जुनेद भाई जैसा चैनल बनेगा, तो आप रोज़ डिप्रेस होंगे, क्योंकि आपके वो वाले व्यूज़ ही नहीं आएंगे जो मेरे अभी आ रहे हैं। उसमें सालों की मेहनत लगनी है, राइट? कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो डिप्रेस ही होंगे आप, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक हार के फिर हार मान लेंगे, नुकसान अपना कराएंगे, वक्त ज़ाया होगा, पैसे ज़ाया होंगे। तो इसी तरह किसी से कंपेयर करने में ये कि भाई क्लाइंट को गाड़ी दिखानी होती है, दिखाएं गाड़ी, तो गाड़ी के लिए कमाएं, वो दिखा दें। ये ईएमआई वीएमआई या बैंक के लोन के चक्कर में भैया लोन लेके नहीं। ये मुझे एक बात एक बंदे ने समझाई थी कि एक शादी में अगर आप जाते हो, बचपन में मैं बहुत छोटा था, हमारे मोहल्ले में एक थे बड़े भाई, कि इंसान अपनी औकात के हिसाब से ही चीज़ें करता है। अगर एक शादी में हम दोनों इनवाइटेड हैं, अगर मैं इनवाइटेड हूँ और एक अमीर आदमी तो दे देगा हीरे की अंगूठी, मैं क्या अपना गुर्दा बेचूंगा या अपनी गाड़ी बेच के अंगूठी दूंगा? मैं वही दूंगा जो मेरी मेरी रेंज में है। तो स्टे इन योर लेन, अपनी रेंज ना छोड़ें दूसरे की रेंज देख के, बिकॉज देयर इज़ नो स्टॉपिंग। आज आप इसको देख के, फॉर एग्जांपल इसके पास प्रियस है तो आपने फॉर्च्यूनर निकाल ली, तो जब आप फॉर्च्यूनर निकालोगे ना तो आगे एक आउडी वाला खड़ा होगा, उसको देख के फिर क्या निकालोगे? i7 निकालोगे। i7 निकालोगे, आगे एक बंदा प्राडो में खड़ा होगा, फिर उसको, ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी। हाइपर कार तक बात चली जाएगी भाई, हाइपर कार तक जाने में हाइपर टेंशन हो जाएगा आपको। तो कंपेयर नहीं करना, लोगों से मुकाबला ना करें, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। और रही बात ये कि आपके फैमिली ने बिज़नेस को नहीं बढ़ाया, देखिए वो क्लियरली बिज़नेस एक्यूमेंट तो नहीं है, जो बना बनाया मिल गया ठिया उस पर ही बैठे हुए। प्राइड ये नहीं होती कि हम ये थे, प्राइड ये होती है कि मैं इस चीज़ को आगे कहाँ लेके गया। हमारे यहाँ प्राइड क्या होती है कि आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। अरे भाई तू मुस्लिम घर में पैदा हो गया, यही एक तेरा कंट्रीब्यूशन है कि तू इत्तेफाक से यहाँ आ गया। तूने उस चीज़ को अच्छा कैसे किया? या आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, तेरे पास चॉइस थी कोई? क्या तू खुद ढूंढ के आया था गूगल मैप पे यूं यूं घुमा के यहाँ फेंक अल्लाह मियाँ मुझे? यू हैड नो चॉइस। आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, अभी तेरे पास चॉइस कहाँ थी? तुझे आज चॉइस देता हूँ, बेटा ये रहे 2 पासपोर्ट, कौन सा लेगा? सबको पता है कौन सा लेगा, राइट? बस ये प्राउड था। प्राउड आप होते हो कि हाँ मैं इस चीज़ को यहाँ तक लेके गया, मुझे एक्स स्टेज पे मिली एक चीज़, उसको मैं वाई तक लेके गया, या ए पे मिली तो मैं बी तक लेके गया। देन यू कैन टेक सम प्राइड ना। तो ये प्राइड लेना कि जी हमारा ये चलता हुआ आ रहा है और ये वो एक कमाएगी तो दूसरी खाएगी, नहीं भाई, सबने कमाना है। कमाना ही नहीं होता, सस्टेन भी करना होता है। कि अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आई एम सॉर्टेड फॉर लेट्स से 10 years, तो क्या हाथ पैर रख के बैठे हैं? वो निकलते हुए टाइम नहीं लगेगा, सस्टेन करना होता है चीज़ों को। कभी भी रिलैक्स नहीं होना, कंफर्टेबल नहीं होना। यू नेवर नो मैन, कोई बड़ी बीमारी घर में आ जाए, कोई बड़ा खर्चा आ जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप सड़क पे आ जाओ, इंटरनेट बंद हो जाए दुनिया से, मैं क्या करूँगा फिर? बैकअप्स होने चाहिए, एंड लाइक यू कांट रिलाई ऑन एनीथिंग दीज डेज। दुनिया यूं बदल रही है भाई, पता ही नहीं चलता। आप एक स्किल सीखते हो, उसका ऑटोमेशन आ जाती है, फिर क्या करोगे? तो ये गलत सोच है कि एक कमाएगी हम बैठ के खाएंगे। यार तुम 2 लाख साल की एवोल्यूशन के बाद तुम एक 1 ट्रिलियंथ चांसेस थे फॉर यू टू बी बोर्न, एंड नाउ यू आर बोर्न, एंड दिस इज हाउ यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ।
by spending on girls who don't even respect you. They take your money, marry someone else. ये क्या साइंस है, ये क्या लॉजिक है? पैसा तेरा है, शादी उस किसी और की हो रही है? हमारे दोस्त के साथ हुआ था, किसी लड़की ने बोला कि वो मुझे दुबई का वीज़ा लगवा दो 3 महीने वाला. आई एम टॉकिंग लाइक अ डेकेड बैक. तो 3 महीने वाला वीज़ा महंगा होता है, ₹1,00,000 का होता होगा उस वक्त. तो उसने बोला कि मैं भी नहीं लगवा सकता, बिकॉज लाइक ही सेंस कि यार चीज़ें कहीं जा नहीं रही, मैं इसको फेवर क्यों दूँ. टर्न्स आउट शी वेंट देयर टू मैरी. उसकी शादी थी वहाँ, वीज़ा उससे निकलवा रही थी क्योंकि उसके पास पैसे थे, पैसे वाला है वो, था उस वक्त. यू गेट इट? तो ये होता है सीन. तो जहाँ वो पैसे के आप लगा दो ना, वो कहती है इससे तो नहीं करनी, क्योंकि भाई जब कुछ किए बगैर मुझे फ्री का ATM मशीन चल रही है तो मैं कहीं और से कोई और चीज़ ढूंढ लूँगी, राइट? नो वुमन लाइक्स अ मैन. देखो स्पेंडिंग एक अलग चीज़ है, एंड यू नो पैम्पर समवन और यू लाइक यू स्पॉइल समवन. मगर एक होता है कि भैया लिमिट में रह के निवाला खिलाओ सोने का, मगर शेर की आंख से देखो. ये कहते हैं ना बैलेंस में. ये थोड़ी कि अगला आपको अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपने जी इसको भेज दिए 25,000 ले जाएं, गो 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 सैलून जाओ. नो वुमन रिस्पेक्ट्स यू. सो चीज़ें हमेशा इक्वल होनी चाहिए. सो रही बात ये कि अब आप क्या करें. अब आप देखें ऑलरेडी यू आर इन द फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स इन दिस. आपने लिखा ना यू वर्क फॉर अ न्यूज़ एजेंसी वगैरह. अब इसमें क्या कर सकते हैं, मुझे कोई ख़ास होप नज़र नहीं आती. आई एक्सपेक्टेड समथिंग एज आई वॉज गोइंग थ्रू योर ईमेल कि शायद नई पीढ़ी जो है उसमें कोई समझ बूझ होगी, क्योंकि आपको क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही तभी आपने ईमेल लिखी. लेकिन आपका भाई भी अगर वही निकला कि जो बाबा जी ने हरकत की वो भी वही चीज़ें कर रहा है और EMI पे गाड़ियाँ लेके शो ऑफ कर रहा है. एंड यू मेंशन दिल्ली, राइट? अब यू डिडंट मेंशन व्हाट्स योर बैकग्राउंड. और ओके, आपका जो लास्ट नेम है दैट्स अ वेरी सिंधी नेम. Sindhis are financially good, but आप दिल्ली में हैं, so I can't be sure. I'm sorry. Sorry, you said Jain family. Jain family in Delhi. So Jains are normally good. Are all Jains Marwadis? Yes, some Jains are Marwadi. या most Marwadis are Jain. ये मुझे ज़रा please correct कीजिएगा. We also have a Marwadi community in Karachi, but they're Muslim Marwadis. सलावट से उनका ताल्लुक है. जो मेरा पुराना मोहल्ला है वहाँ पे उनकी कम्युनिटी रहती है, बट देर ऑल कॉन्वर्ट्स. तो अब कब कॉन्वर्ट हुए ये नहीं पता, बट वो यहाँ बसते हैं. अब जैसे आपने खुद कहा योर ब्रदर इज़ माइल्स अहेड इन टर्म्स ऑफ वर्क एथिक, तो आप ना थोड़ा उनको ट्रेन करें, भाई को ज़रा समझाएं. एक तो विमेन पर्सपेक्टिव दें कि भाई नो गर्ल लाइक्स एनी गाय हु स्पेंड्स ऑन देम लाइक दिस, दे डोंट रिस्पेक्ट द गाय. ठीक है, तो उसको ज़रा अकल लाएं और बोलें कि भाई हम यहाँ अगर 30,000 के हिसाब से, क्योंकि आप यूर अ फाइनेंशियल यूर इन द फाइनेंस साइड ऑफ थिंग्स, तो आप ज़रा एक प्रेजेंटेशन बना के देंगे इस रेट पे हम 2027 पे सड़क पे होंगे. डू यू वांट दैट? बिकॉज क्लियरली यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग. सो वर्क एथिक अच्छा है तो उसको समझाएं, उसका टॉक्सिक माइंडसेट जो है शोइंग ऑफ वाला उससे हटाएं. माता जी तो आपकी आई एम नॉट श्योर उनका क्या होल्ड है समझाने में, बट लाइक 25 सिंपिंग ओवर गर्ल्स, 32 लाख की गाड़ियाँ उठा ली, तो क्लियरली वो इतना कुछ रोल नहीं कर पाएंगी. सो यू नीड टू ड्रॉ अ फाइनेंशियल लाइन. यू नीड टू शो देम कि भाई इस रेट पे हम यहाँ सड़क पे होंगे. सो डोंट डू दैट. वी हैव समथिंग दैट कैन बी बिल्ट इनटू समथिंग बिग इफ़ ओनली वी अप्लाई दिस एंड दिस. इसको थोड़ा सा ही करें. Showing off is never a good thing because there is no limit to showing off, and उसमें आप ही थकेंगे, अगले का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे. तो जो लोग इस चीज़ पे रिलाई करते हैं कि मैं इससे कुछ विन कर लूँगा, विन कुछ भी नहीं है इसमें. सो प्लीज़ जितने लोग सुन रहे हैं अपनी चादर देख के पैर फैलाएं. कंपैरिजन में जाएंगे, इंस्टाग्राम पे उसने ये पहना है तो मैं भी ये करूँगा, या वो फलानी डेस्टिनेशन में गई तो मैंने भी डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, वगैरह वगैरह. इसकी चेज़ में अगर आप लग गए, पैसे के पीछे आप अगर लग गए, चेज़ वैल्यू तो स्टोर है यहाँ पे. मतलब ज़िंदगी में वैल्यू को चेज़ करें, अपनी वैल्यू बढ़ाएं. चेज़ गुड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, अपने आप को उस लेवल पे लेकर आएँ. ठीक है, किसी की चीज़ देख के उसको टॉन्ट करना कि हराम का है, या फिर ये कि टॉन्ट करना किसी भी तरीके से जेलसी में गलत है. compete करें, एस्पायर करें कि अच्छा इसके बाद ये गाड़ी है यार मैं भी लूँगा, i7 मुझे भी बड़ी पसंद है, खुद दरवाज़ा खुलता है, मज़ा आता है, बॉम्बो क्लाट हो जाता है,
राइट? तो मैं भी ये करूँगा या करूँगी. एस्पायर दैट, टेक अ लॉन्गर रूट. ज़िंदगी का रूट थोड़ा सा लंबा है, मगर सफल इंसान उसी में ही होता है. शॉर्टकट में स्पीड ब्रेकर्स बहुत होते हैं. आप शॉर्टकट मार के कुछ ना कुछ तो कर लोगे, लॉन्ग टर्म आपको बड़ा नुकसान होगा. सो ऑलवेज प्ले द लॉन्ग गेम, दैट इज़ मोर रिलायबल. बाकी प्लीज़ कंपैरिजन से, कंपटीशन से दूर रहें. compete सिर्फ अपने आप से करना है, गुजरे हुए कल से, कि मैं कल से बेहतर हूँ कि नहीं, मेरी हेल्थ कल से बेहतर है या नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस, मेरे गोल्स, क्या मैं अपने गोल से एक दिन मज़ीद करीब हूँ या उससे मैं एक दिन या एक हफ़्ता दूर हो गया हूँ बिकॉज आई डिड दिस और दैट. सो प्लीज़ इस तरह करें. और प्लीज़ अपने भाई को समझाएं, योर ब्रदर इज़ योर ब्रदर इज़ योर होप. वही सही समझ सकता है, वो इस जनरेशन का भी है. पेरेंट्स आई थिंक 40 के बाद लोग हैं ना, ये बंद हो जाते हैं. सो मैं तो नहीं, उन पे काम भी नहीं करता. फोकस भी मेरा यंगस्टर्स पे ही होता है. तो यंगस्टर्स थोड़े इम्प्रेशनेबल होते हैं एंड दे कैन चेंज. उनको आदत नहीं लगी होती बुरी चीज़ों की, वो भी ट्रायल पे होते हैं, ट्राइंग एंड टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा थोड़ा सा ये वाली स्पाइस, थोड़ी सी ये. ज़िंदगी में अगर लेज़ी हूँ तो कैसा चलेगा, अगर मैं एक्टिव हो जाऊँ तो कैसा चलेगा, मेहनत करूँ तो कैसा चलेगा, नहीं मेहनत करूँ तो कैसा. सो देर ट्राइंग डिफरेंट थिंग, देर एट अ बफे, राइट? बट एज यू ग्रो ओल्डर, आप वन डिश पार्टी में आए थे और वो वन डिश वही होती है जो आपने ज़िंदगी के तमाम फ्लेवर जोड़ के एक बनाई होती है. अब आपको उसी की आदत, क्या एग्जाम्पल सेट किए, आई फकिंग एस एट इम्प्रोव. तो वो जो एक आपने कॉन्कॉक्शन बना ली होती है, अब आपका वही मील होता है एंड दैट इज़ योर एंटायर वर्ल्ड. यू डोंट नो एनीथिंग आउटसाइड ऑफ इट बिकॉज दोज आर दी ओनली इंग्रेडिएंट्स यू ऑलवेज हैड. सो यंगस्टर्स पे काम करें, भाई पे मेहनत करें. आई थिंक ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इवेंचुअली. इफ नॉट, that is only going to end up in a disaster. अल्लाह ना करे ऐसा हो. Lots of prayers for you. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.